नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। पुनीत राजकुमार के स्वीय जन्मदिन बीदर शहर के कन्नड़ भवन में मनाया गया। आईएलएम फाउंडेशन और मूवमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा सहरे की व्यवस्था। खड़गे ने 7 चरण के मतदान पर जताई चिंता, कहा विकास को लगेगा झटका। 7वें वेतन पैनल ने मूल वेतन में 27.5% बढ़ोतरी की सिफारिश की, सीएम सिद्धरामैया। बीएस येदियुरप्पा का कहना है कि केएस ईश्वरप्पा के बेटे को टिकट न दिए जाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। पुनीत राजकुमार के जन्मदिन बीदर शहर के कन्नड़ भवन में कर्नाटक रक्षणा वेदिके द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पत्रकारों और साहित्यकारों को सम्मान किया गया। इस मौके पर वेदिके के राज्य अध्यक्ष एच सुरेश और जिला अध्यक्ष अविनाश बुदेरकर मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक रक्षणा वेदिके कावಲು ಪಡೆ राज्य समिति ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣ್ಮಣಿ, ಹೊರನಟ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು 49ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಿನಾಶ್ ಬುದಾರ್ಕರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಸುಂದರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಏನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಕಂಪು ವಾತಾವರಣ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ನಾಯಕರು, ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಅನೇಕ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಿನ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಿನ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಂಡ, ಯುವಕರ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಗಡಿನಾಡ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಕರವೇ ಕಾವಲು ಪಡೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕನ್ನಡದ ನೆಲದವರಾದ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಕುಲದವರು ಹೌದು. ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆ, ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ, ಹೋರಾಟದ ಭಾಷೆ, ವಿಶ್ವ ಭಾಷೆ, ಏಕತೆ, ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಭಾಷೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೋವಿಡ್ದಂಥ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 49ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶ್ ಬುದೇರಕರ್ ಅವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಉಳಿಬೇಕು, ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೂರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ಪರ ಕಳಕಳಿ, ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹತ್ತ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೂರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನಾನು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಕರಕನಳ್ಳಿ. बाराबाद से रमजान शुरू होते ही बीदर जिले के आईएलएम फाउंडेशन और मूवमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा सहरी केंद्र बीदर शहर के मक्की मस्जिद में
स्थापित किया गया है, जिसमें प्रति रात 3 बजे सहरी के लिए भोजन के पैकेट की व्यवस्था कर शहर के विभिन्न क्षेत्र और सड़कों पर जरूरतमंद लोगों में बांटा जाता है, जिसमें कुछ विद्यार्थी, मुसाफिर सहित अन्य लोग हैं जो बीदर के निवासी नहीं है और उन्हें रमजान के रोजा रखने के लिए रात सहरी खाने की व्यवस्था करना मुश्किल होता है। ऐसे में सहरी केंद्र द्वारा खाने की व्यवस्था की जा रही है, जो एक बहुत ही पुण्य का काम है। इस काम में जुड़े युवाओं की सराहना की जा रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। युक्ति समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने का फैसले को लेकर भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि देश में विकास प्रभावित होगा क्योंकि पूरी चुनाव प्रक्रिया लगभग 80 दिनों तक चलती है। उन्होंने कहा अगर चुनाव जल्दी खत्म हो जाते हैं और नतीजे 3 या 4 मई को आते तो इससे बहुत से लोगों को मदद मिलती, लेकिन वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा चुनाव प्रक्रिया को लंबा खींचने में कामयाब रहे ताकि इससे उन्हें मोदी को मदद मिल सके उन राज्यों और जिलों की यात्रा करने के लिए जहां उन्हें अभी जाना है। खड़गे ने यहां मीडिया से कहा। उन्होंने यह भी कहा कि आदर्श आचार संहिता के कारण लगभग 70 से 80 दिनों तक सभी विकास कार्य बंद रहेंगे। हालांकि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि चुनाव से लोगों से जुड़े रोजमर्रा के मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बजट में पहले ही धन आवंटन के साथ जिन कार्यों की घोषणा की गई है वे जारी रहेंगे, लेकिन कुछ काम और कुछ राजनीतिक फैसले नहीं लिए जा सकते। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि 7वें वेतन आयोग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5% बढ़ोतरी की सिफारिश की है। आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सीएम ने कहा कि सरकार रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उचित निर्णय लेगी। आयोग का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो गया। सीएम ने कहा कि सरकार ने पहले अंतरिम उपाय के रूप में मूल वेतन पर 17% की वृद्धि की अनुमति दी थी। सीएम ने कहा कि आयोग ने सिफारिश की है कि न्यूनतम मूल वेतन 17,000 रूपये से बढ़कर 27,000 रूपये किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा वित्त विभाग सिफारिशों पर विस्तार से गौर करेगा और सरकार को सुझाव देगा। राज्य सरकार कर्मचारी संघ द्वारा जारी एक बयान के अनुसार आयोग की सिफारिशों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह, अधिकतम मूल वेतन 1,04,600 रूपये से 2,41,200 रूपये, कर्मचारियों के लिए 50% वेतन के साथ 180 दिनों की छुट्टी शामिल है। परिवार के बीमार सदस्यों की देखभाल और 70 से 80 वर्ष की आयु के पेंशन भोगियों के लिए मूल्य पेंशन में 10% की वृद्धि। अनुभवी भाजपा नेता के एस ईश्वरप्पा के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि ईश्वरप्पा के बेटे के कांतेश को टिकट देने से इनकार करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। रविवार को यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं वह नहीं हूं जो उम्मीदवारों को टिकट जारी करता हूं। संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों पर निर्णय लेता है, मैं केवल सुझाव दे सकता हूं और केंद्रीय नेता निर्णय लेते हैं, मैं नहीं करता। जानिए क्यों कांतेश को हावेरी सीट से टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वादा किया था कि वह लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक के 25 से 26 सांसदों के साथ दिल्ली का दौरा करेंगे और विश्वास जताया कि ईश्वरप्पा 18 मार्च को शिवमोगा में होने वाले पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे। उन्होंने दोहराया कि आंतरिक असंतोष को 2 दिनों में सुलझा लिया जाएगा। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता वी सोमन्ना ने आत्मविश्वास से गोविंद राज नगर निर्वाचन क्षेत्र से अपनी जीत की घोषणा की और कहा कि अगर वह चुनाव के दौरान घर पर रहते और सोते तो भी विजयी होते। शहर के मुर्गा राजेंद्र सामुदायिक भवन में आयोजित एक सभा में बोलते हुए सोमन्ना ने उन्हें टिकट देने के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए अपनी आरामदायक जीत को याद किया। अपनी नई राजनीतिक यात्रा पर विचार करते हुए सोमन्ना ने तुमकुरू निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपनी आकांक्षाओं का खुलासा किया कि उनके साथ हुए अन्याय को समझते हुए भाजपा अलाकामना ने उन्हें टिकट की पेशकश की थी। अपने विरोधियों के परोक्ष संदर्भ में सोमन्ना ने पार्टी के प्रति उनके समर्पण पर जोर देते हुए उन पर निर्देशित आलोचना को सूक्ष्मता से संबोधित किया। गठबंधन और राजनीतिक गतिशीलता के बारे में चर्चा के बीच सोमन्ना ने अपने निर्णय को आकार देने में अलाकामना की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और उनके निर्देशों का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीओ मनोज कुमार मीना ने शनिवार 16 मार्च को कहा कि उन्होंने चुनावी धोखाधड़ी गतिविधियों के खिलाफ राज्य भर में पिछले 6 महीनों में 4710 एफआईआर दर्ज की है। 1 अगस्त 2023 से 14 मार्च 2024 के बीच 531.51 करोड़ रुपए की शराब, ड्रग्स, 24.47 किलोग्राम सोना चांदी और अन्य सामान जब्त किए गए हैं। नकदी जब्ती पर करीब 190 एफआईआर, शराब पर 3,328 एफआईआर, 42 मामले कीमती धातुएं, 1,130 मामले ड्रग्स, मुफ्तखोरी पर 1 मामला और 19 अन्य एफआईआर दर्ज की गई। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की कर्नाटक इकाई ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी को राज्य में आगामी आम चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की बड़ी हार होगी। विजेंद्र ने कहा कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सत्ता में है और अभी भी चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाई है। वे अपने अपने मंत्रियों को अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ने के लिए देख रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी कोई दिशा नहीं है और यह भारी अंतर से पराजित होने जा रही है। विजेंद्र ने यह भी कहा कि राज्य की जनता पीएम मोदी के साथ सौभाग्य से लोगों का मूड हमारे पक्ष में है और कर्नाटक एक बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। हम राज्य में अधिकतम सीटें जीतने जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल रविवार को पार्टी से बगावत करने वाले केएस ईश्वरप्पा को मनाने पहुंचे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। ईश्वरप्पा कर्नाटक के शिवमोगा लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बड़े बेटे बीवाई राघवेंद्र के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अग्रवाल ने पार्टी के कुछ अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ईश्वरप्पा से मुलाकात की और उन्हें चुनाव नहीं लड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि वह अड़े रहे और कहा कि वह निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और कोई भी उनका मन नहीं बदल सकता। ईश्वरप्पा से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अग्रवाल ने कहा कि यह उनकी निजी मुलाकात थी और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम एक ही पार्टी के दोस्त हैं, यह हमारी निजी मुलाकात थी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। पुनीत राजकुमार के 20वें जन्मदिन बीदर शहर के कन्नड़ भवन में मनाया गया। आईएलएम फाउंडेशन और मूवमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा सहरे की व्यवस्था। खड़गे ने 7 चरण के मतदान पर जताई चिंता, कहा विकास को लगेगा झटका। 7वें वेतन पैनल ने मूल वेतन में 27.5% बढ़ोतरी की सिफारिश की, सीएम सिद्धरामैया। बीएस येदियुरप्पा का कहना है कि केएस ईश्वरप्पा के बेटे को टिकट न दिए जाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।